Assalamu alaikum, dear class 7th students. We are going to learn mathematics. Today's topic is congruence of triangles. Congruence के क्राइटेरियाज आप पढ़ चुके हैं. इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम बना चुके हैं. जहाँ पर भी आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप उस वीडियो का मदद लेकर कन्फ्यूजन दूर कर सकते हो. तो आज हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के टॉपिक पर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. लेट अस स्टार्ट. क्वेश्चन इज विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया डू यू यूज़ इन द फॉलोइंग. हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं तो हमें बताना है कौन से क्राइटेरियाज कॉन्ग्रुएंस के कौन से क्राइटेरियाज यूज़ किए गए हैं. वी आर गिवन two triangles, triangle ABC and triangle DEF. यहाँ पर AC is equal to DF, side AB is equal to DE, side BC is equal to EF. That is, this side AC is equal to this side, that is DF. इसी तरह से side AB is equal to side DE. इसी तरह से साइड BC इज़ इक्वल टू साइड EF. तो अगर हम देखेंगे गौर से, थ्री साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल और रेस्पेक्टिवली इक्वल टू थ्री साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल, दैट इज़ साइड 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 कॉन्ग्रुएंस. तो जो एक डाटा दिया हुआ है दैट इज़ साइड AC इक्वल DF, AB इक्वल DE, BC इक्वल to EF, ट्रायंगल्स ABC और ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF. तो यहाँ पर जो क्राइटेरिया इस्तेमाल हुआ है तो इसको हम SSS कॉन्ग्रुएंस कहेंगे, साइड साइड साइड. ओके, आपने देख लिया और अच्छी तरह से समझ भी लिया. व्हेन three sides of one triangle are respectively equal to three sides of the other triangle, we say the two triangles are congruent by SSS congruence, side 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 congruence. इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है. we are given two triangles, triangle PQR and triangle XYZ. the data given is ZX, side ZX is equal to RP, side RQ is equal to side ZY, side angle PRQ, that is this angle PRQ is equal to angle XYZ, XZY, sorry, this angle XZY, this angle and this angle. कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं. साइड ZX is equal to side RP of this triangle, side RQ, this side is equal to side ZY of this triangle. इसी तरह से एंगल PRQ, that is this angle, or is equal to एंगल XZY, that is this angle Z. तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे, साइड and side, two sides, this side is equal to this and this side is equal to this side, two sides and the included angle, this angle is included between these two sides. So we can say that the two triangles are congruent because two sides and the included angle of one triangle are respectively equal to two sides and the included angle of the other triangle. तो इस क्राइटेरिया को हम SAS क्राइटेरिया के नाम से जानते हैं, साइड एंगल एंड साइड क्राइटेरिया. triangle PQR is congruent to triangle XYZ. This criteria is SAS congruence. Two sides and the included angle of one triangle are respectively equal to two sides and the included angle of the other triangle. Okay, next we are given two triangles, triangle LMN and triangle FGH. ओके, तो डाटा जो गिवन है, एंगल
MLN is equal to angle FGH, that is angle L is equal to angle G. Okay, angle NML is equal to angle GFH, that is angle M is equal to angle F. Okay, side ML is equal to side FG. So triangle LMN is congruent to triangle GFH. तो डाटा जो दिया है हम इसको फिर से रिवाइज करेंगे. एंगल MLN, that is this angle, is equal to angle FGH, that is this angle. This angle is equal to angle L is equal to angle G. इसी तरह से angle NML, that is this angle, is equal to angle GFH, that is this angle. So two angles of the two triangles are equal, and side ML, this side, is equal to FG, that is this side. तो अगर हम यहाँ पर गौर से देखेंगे द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये डाटा तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमें बताना है कौन सा क्राइटेरिया इस्तेमाल हुआ है. तो हम देखेंगे टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, true angles and the included side of one triangle are respectively equal to two angles and the included side of other triangle. So इस क्राइटेरिया को हम कहेंगे angle side angle. Triangle LMN is congruent to triangle GFH. This criteria is called ASA congruence because two angles and the included side of one triangle are respectively equal to two angles and the included side of the other triangle. Okay, we are given two triangles, that is ABE and BCD. two triangles, data जो दिया हुआ है, side EB is equal to DB, side AE is equal to BC, angle A is equal to angle C, each 90 degree. So triangle ABE is congruent to triangle BCD और CDB. ओके, पहले हम डाटा को फिर से एनालाइज करेंगे. दिस साइड EB is equal to DB, AE, this side AE is equal to BC. Okay, so angle A, this angle, is equal to angle C, each 90 degree. Triangles ABE and triangle CDB are congruent. अगर हम गौर से देखेंगे we have यहाँ पर angles are equal to both are right angles, each 90 degree. So right angles, side opposite to right angle is called hypotenuse. यहाँ पर भी side opposite to angle, right angle, hypotenuse, both are equal. So right angle, we have right angles are equal, hypotenuse equal, and one other side, that is AE is equal to BC other side. और तो हम कह सकते हैं right angle, hypotenuse and one side of one triangle are respectively equal to right angle, hypotenuse and one side of other triangle. So इस क्राइटेरिया जो यहाँ पर यूज़ हुआ है इसको हम RHS कॉन्ग्रुएंस कहते हैं, RHS रूल. ओके, तो आप जान चुके हैं किस तरह से हम ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंस के क्राइटेरियाज समझ सकते हैं. ओके, अदर क्वेश्चन इज you want to show that triangle ART is congruent to triangle, this is congruent PEN. If you have to use SSS criterion, then you need to show, हमारे पास दो ट्रायंगल्स दी हुई हैं, ट्रायंगल ART एंड ट्रायंगल PEN. क्वेश्चन इज इफ़ यू हैव टू यूज़ SSS क्राइटेरियन, आपको यूज़ करना है कौन सा क्राइटेरियन, SSS, साइड साइड साइड. देन यू नीड टू शो AR इज़ इक्वल टू विच साइड, AR किस साइड के बराबर होना चाहिए. इसी तरह से RT
दिस साइड, ये किस साइड के बराबर होना चाहिए दूसरी ट्रायंगल के, इस तरह से AT ऑफ दिस ट्रायंगल इट शुड बी इक्वल टू विच साइड ऑफ द PEN। ओके, तो हमें SSS क्राइटेरिया यूज़ करना है, तो हम लिखेंगे फॉर SSS क्राइटेरिया वी नीड A और दिस साइड, A और शुड बी इक्वल टू दिस साइड PE। ओके, और T दिस साइड शुड बी इक्वल टू दिस साइड EN। इसी तरह से AT शुड बी इक्वल टू PN। तभी हम कह सकते हैं कि दीज टू ट्रायंगल्स A और T, हमें इसका ऑर्डर देखना है जिस ऑर्डर में ये लिखा हुआ होगा। ट्रायंगल A और T इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PEN। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज, A से हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं अप टू T। इसी तरह से हमें यहाँ भी यही करना है, PEN यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज चलना है फ्रॉम P टू N, यहाँ पर फ्रॉम A टू T, यहाँ पर फ्रॉम P टू N। तो तभी हम कह सकते हैं कि दिस साइड, फर्स्ट साइड ऑफ दिस ट्रायंगल शुड बी इक्वल फर्स्ट साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, सेकंड साइड ऑफ दिस ट्रायंगल शुड बी इक्वल टू सेकंड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। इसी तरह से थर्ड साइड ऑफ दिस फर्स्ट ट्रायंगल शुड बी इक्वल टू थर्ड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल रेस्पेक्टिवली। ये होनी चाहिए ये इक्वालिटीज़। ओके, एक और क्वेश्चन हम देखेंगे। इफ़ इट इज़ गिवन दैट angle T is equal to angle N and you are to use SAS criteria and you need to have, पहले हम डाटा देखेंगे। हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं A और T, PEN, क्लॉकवाइज ही हमें चलना होगा A और T PEN। हमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, एंगल T इज़ इक्वल टू एंगल N, एंगल T इज़ इक्वल टू एंगल N। तो हमें इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बनाने के लिए क्या चाहिए, आर टी किस साइड के बराबर, आर टी ऑफ दिस ट्रायंगल शुड बी इक्वल टू विच साइड ऑफ दिस ट्रायंगल। इसी तरह से पी एन ऑफ दिस ट्रायंगल शुड बी इक्वल टू विच साइड ऑफ दिस ट्रायंगल। ओके, तो हम पहले देखेंगे ए और टी, इसको हमें यहाँ से सीक्वेंस देनी है। ए और टी यहाँ से यूज़ हुआ है, यहाँ से इसका नाम है PEN, तो ऑर्डर ये वाला है। ओके, तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है हमारे पास एंगल T इज़ इक्वल टू एंगल N। तो यहाँ पर हमें क्राइटेरिया इस्तेमाल करना है SAS। तो SAS क्राइटेरिया स्टेट्स दैट टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल शुड बी रेस्पेक्टिवली इक्वल टू टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। दैट मीन्स दिस एंगल इज़ इंक्लूडेड बिटवीन दीज टू साइड्स, दिस एंड दिस। इसी तरह से यहाँ पर दिस एंगल इज़ इंक्लूडेड बिटवीन दिस साइड एंड दिस साइड। तो यही साइड्स इक्वल होने चाहिए। सो और टी शुड बी इक्वल टू EN। इसी तरह से PN शुड बी इक्वल टू AT। ओके, तो हम लिख सकते हैं फॉर SAS क्राइटेरिया वी नीड और टी शुड बी इक्वल टू EN। ये हमने देख लिया क्योंकि ऑलरेडी एंगल N और T इक्वल हैं, तो ये दो साइड्स हमें इक्वल करने हैं। और टी शुड बी इक्वल टू EN। इसी तरह से PN शुड बी इक्वल टू AT। ओके, ये साइड इसके बराबर होगा, ये साइड इसके बराबर होगा क्योंकि ये एंगल इसके बराबर है, तभी ये SAS क्राइटेरिया फॉलो करेगी। ओके, इफ़ इट इज़ गिवन दैट AT इक्वल टू PN, सेम ट्रायंगल्स हमारे पास हैं, AT इज़ इक्वल टू PN एंड यू आर टू यूज़ ASA क्राइटेरिया। यहाँ पर हमें कौन सा क्राइटेरिया इस्तेमाल करना है, ASA। तो हम ट्रायंगल्स पहले देखेंगे A और T। ओके, इसी तरह से PEN, दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ लेटर्स दैट एग्जिस्ट इन द नेम्स ऑफ द ट्रायंगल्स A और T एंड PEN। अब हमारे पास जो हमें जो बताना है, हमें बताना है कि ZA और A एंड RT पर थोड़ी सी लिखने में
थोड़ा सा एरर हुआ है। फॉर एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया वी नीड, ऑलरेडी दिया हुआ है AT इज़ इक्वल टू PN, दिस साइड इज़ इक्वल टू दिस साइड। ओके, तो हमें इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताना है बाय ASA। तो साइड जो है दिस इज़ इंक्लूड बिटवीन टू एंगल्स, दैट इज़ दिस एंगल एंड दिस एंगल। इसी तरह से यहाँ पर दिस एंगल एंड दिस एंगल इंक्लूड दिस साइड। तो ASA congruence criteria states that two angles and the included side of one triangle should be equal to angles and the included side of the other triangle। तो यहाँ पर हम आसानी के साथ बता सकते हैं, for angle side and angle criteria we need angle A should be equal to angle P, इसी तरह से angle T should be equal to angle N। actually this is here angle A and angle T, angle A should be equal to angle P, angle T should be equal to angle N, क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ था this side is equal to this side। तो आई थिंक अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे किस तरह से कॉन्ग्रुएंस पर क्वेश्चंस हल किए जा सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। आई विल बी बैक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।